ڈاکٹر ذاکر نائک کسی بھی شہرت اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ان کے حوالے سے کافی زیادہ چرچے ہیں، اور پچھلا پورا ہفتہ انہوں نے پاکستان میں کافی مصروف ترین گزارا، اور جہاں پہ کافی زیادہ حلقے ان کے پاکستان آنے پہ ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے آنے پر ناخوش تھے۔ تو خیر، ہم اس بحث میں تو نہیں پڑیں گے اور نہ ہی یہ ہمارا موضوع ہے، بلکہ ہم بات کریں گے کچھ ایسے سوالات کے جوابوں کے حوالے سے کہ جو لوگوں نے پاکستان میں ان سے کیے، اور ان کے جوابات کافی زیادہ حیران کن تھے اور ہمارے لیے کافی نالجیبل تھے۔ اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال ایک نوجوان نے پاکستان میں ان سے یہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو ان کا جواب بہت ہی حیران کن تھا۔ تو چلیے سب سے پہلے سنتے ہیں اس نوجوان کا سوال، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام انشاد یوسف ہے اور میں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں، لیکن میں نے سم ٹائمز بہت کوشش کی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک مسلمان کی زندگی گزاروں، کیونکہ میں نے آپ کے بھی بہت سے لیکچر سنے اور بہت زیادہ میں اسلام سے انسپائر ہوں۔ بٹ دا ریزن از کہ مذہب اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو دیکھا کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہو، تو مجھے یہی پتہ چلا وہ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ سو کیا ایک مسلم بحیثیت مسلم کیا نماز پڑھے بغیر خود کو مسلم کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ ایتھیسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آنے کی کوشش کر رہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور انہوں نے دیکھا ان کے دوست تو کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ تو ان کا مین سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلم ہے لیکن نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے کیا؟ نمبر 1، مسلم کہنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، وہ یہ مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ یہ 2 چیز کوئی شخص اگر مانتا ہے تو وہ مسلم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے پریکٹسنگ مسلم، ایک ہوتا ہے نان پریکٹسنگ مسلم۔ ایک ہوتا ہے ویری اسٹرانگ پریکٹسنگ مسلم۔ خالی مسلم بولنے کے لیے یہ 2 شرطیں کافی ہے۔ اگر وہ شہادت دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو یہ بولنے سے وہ منیمم کرائٹیریا پوری کر دیتا ہے۔ بعد میں تو لیولز تو بہت ہے، ایکڑوں ہزاروں لیول ہے، لیکن منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے، منیمم یہ ریکوائرمنٹ۔ آپ پوچھیں گے مسلم شراب پی سکتا ہے؟ پینا نہیں چاہیے، پیتا ہے اور بولتا ہے میں غلط کرتا ہوں، پھر بھی مسلم ہے، لیکن پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ ایک شخص اگر شراب پیتا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، خمر، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، آئیڈل ورشپ، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم سفلتا پاؤ۔ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک دم صاف ہے کہ مسلمان شراب پینا مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی مسلم پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اسے کافر نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے ایک مسلمان جو اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ شراب پینا اسلام میں جائز ہے تو وہ اللہ کے اس احکام کو جھٹلا رہا ہے۔ جس طریقے سے پہلے بھائی صاحب نے پوچھا کافر کس کو کہتے ہیں، اگر ایک مسلمان غلط کرتا ہے، حرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری سے غلطی ہوئی لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا ہوں، تو اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اگر وہ اسی طریقے سے کون انسان اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بولتا ہے پڑھنا چاہیے لیکن میں لیزی ہوں،
मैं आलसी हूं। एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े, 2 बार पढ़े तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, इसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उल्मा के 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीस। ईमान और कुफ्र के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। इतना ही सही तो करना अगर आप होगा। मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे, मिनिमम ये साइड पे लगी है पेंसिल, मिनिमम उसको तो बनाना मिनिमम काफी नहीं है। हम पैकेट में जाके ना हमें वो एक साइड हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में। आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? और कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी के पता नहीं। यानी उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपिल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एसीएस क्यों बोलते? बिकॉज द रीज़न इज कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान है, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां करा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई, तो वो भी आउट हो सकते, समझे ना? वो भी क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाता है।
अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है, आप देखते हैं कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उनसे बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए अच्छे तरीके से। आप समझे ना? तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी एक तकरीर सुनो, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, उर्दू में भी है। सलाह अच्छी राह दिखाता है, उर्दू में भी है लेकिन अंग्रेजी के अंदर भी है, सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। और ये आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप ये सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह सलाह के करीब आएंगे। हाँ साहब, कुछ पूछने गए? Zakir bhai, he wants to say his shahada now. माशाअल्लाह। और यही वो जगह है जिसके काफ़ी चर्चे हैं कि पाकिस्तान में इस लड़के ने जाकिर नाइक के हाथों इस्लाम कबूल किया। मैं तो आपको पूछ लिया हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से बोले तो एक मुसलमान कितने बार भी बोल सकता है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है। और उसके सर्वेंट हैं। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। तो ये था डॉक्टर साहब का जामिया जवाब इस हवाले से, यानी मेरे जैसे कम अक्लों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो कि लोगों को गुमराह कर देते हैं कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की नशिस्तों के हवाले से कुछ ऐसे सवालात के जवाब आपके सामने लेके आएँ जो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।